Assalamu alaikum and good morning viewers. In today's video presentation, me, Mohsin Ali Beg and my fellow groupmates Daud Naseem and Sayyid Saqib Hussain will try to uncover and explain an important topic that is about the use of force for states and international law. We'll generally try to discuss and uncover that how a state being a legal and political entity, under what conditions, under what circumstances it can use force in its international dealings under the rules of international law. Our major aim of this whole video presentation will be to differentiate between retortion and reprisal, as these two concepts are an important categories available for states to use force in international law. Viewers, as we all know very well, states are sovereign and equal subjects of international law. States are not free to use military force against other states. They are not even supposed to intervene in other countries' domestic affairs. Article 2.4 of United Nations Charter clearly says that all member states shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. But under two exceptions here. One is at times of collective security, a state has this legal right to join other states in battling or countering an aggressor state. And the other condition here is at times of self-defense, that when a foreign or aggressive state, like for example, if India attacks Pakistan, now Pakistan has this legal right to hit back and to counter Indians' aggression. So this comes under the category of a self-defense, that states can use, state has the legal right to hit back and to preserve its political and territorial interest. Now here a question arises that does a state possess the right of a preemptive or anticipatory self-defense? This question is addressed briefly by the Article 51 of United Nations, which says that the right of self-defense can be exercised against an actual armed attack, not a perceived armed attack. This is an important point to keep in mind, and so this says that, so in other words, the right of anticipatory or preemptive self-defense is not available to a state. Only state is supposed to use force when there is actual armed attack. A preemptive armed attack, preemptive self-defense is not justifiable in international law. Now we will proceed towards explaining retortion and reprisal. We'll try to give examples of both these two important categories of force for the states under which they can use force, and we will also try to give few case studies related to these two important concepts in the upcoming slides. All right, moving on to retortion. I'll try to explain कि retortion basically क्या होता है international relations. But first thing first, viewers, it is important to keep in mind here that both retortion and reprisals are tools of settlement of international disputes. और ये दो important concepts they comes under the coercive means of settlements. It's not like कि ये in international law a state can act preemptively against another states. These two important concepts plus self-defense, these are more of a reactive tactics opted by states usually when they are under attack. Retortion, although in international law is lawful, but it is generally considered as unfriendly and harmful action conducted by a country to sort of hit back against the aggressive behavior or activity of other states. As I said, that earlier international law does confers right upon the state affected to resort to retortion. It is considered as a legitimate method for a country to express its displeasure in a way that hurts a targeted state.
बट इट डज सो बाय स्टेइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप इंटरनेशनल लॉ के बाउंड्रीज से लाइक बियॉन्ड नहीं जा सकते। स्टेट डज पोजेस like a legal right to defend itself, to opt retortion, but only it can so under remaining under the jurisdiction of international law. It is relied on the principle of tit for tat tactics. Usually जब एक स्टेट दूसरे स्टेट्स पे हमला करता है तो या कोई ऐसा एक्शन लेता है अदर देन मिलिट्री अटैक, लाइक एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर देता है, तो वो दूसरा स्टेट्स वो भी राइट रखता है और वो भी अमूमन इसी तरह कहता है। इसको टिट फॉर टैट टैक्टिक कहते हैं। नाउ when one state acts aggressively against the other state also doesn't hold backs, it also tries to counter, this has been the norm of international law अगर हम realist perspective से देखें तो। So this method of implementing retortion, if we look, it seem an inappropriate way, ये appropriate way नहीं है, it although seems an aggressive way, on international realm, but अगर हम देखें तो it has proven effective lethal tool for states to either settling disputes या जो already disputes हैं उनको further like flare up करने के लिए। We can give a range of examples on retortion कि क्या क्या एक्शंस इस कैटेगरी रिटॉर्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम ब्रीफली। लाइक एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स, इम्पोजिंग इकोनॉमिक एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, हम ईरान का केस दे सकते हैं। then if a state imposes restrictions on the entry of citizens of a particular country in its टेरिटरी, जिस तरह के ट्रम्प एरा में कुछ कंट्रीज़ के सिटीजन्स पे ये आयद किया गया था, यमन था, नॉर्थ कोरिया था, पाकिस्तान भी इवन उस लिस्ट में था बट इंक्लूड नहीं किया गया लेटर। जो वार टोन कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के लाइक कोई 6-7 कंट्रीज़ थे जो इसमें इंक्लूडेड थे। साथ ही साथ सीवियरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिलेशंस, वी कैन गिव अ रेंज ऑफ केसेस के जो यूएस और ईरान के दरमियान चलता आया है और स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग। यूएस चाइना के दरमियान जो रिफ्ट पाई जाती है उसमें अक्सर ऐसे मौके आते हैं जिसमें स्टेट्स इस तरह के एक्शंस को रिजोर्ट करता है। साथ ही साथ लाइक इन रिटोर्शन डिप्लोमेटिक रिलेशन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्यूअर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस may be ended, privileges of diplomatic agents may be withdrawn। अगर हम एक पर्टिकुलर केस मैं आपको बताता चलूँ, इट वाज इन लाइक मार्च 2018 जब एक केस वर्ल्ड लेवल पे इमर्ज हुआ था कि एक रशियन एजेंट था, फॉर्मर एजेंट सर्जी स्क्रिपल और उसकी एक बेटी लाइक यूलिया स्क्रिपल, उन दोनों को लाइक बरतानिया में पॉइजन दिया गया था। वो पॉइजन आई थिंक नर्व एजेंट के थ्रू दिया गया था और दिस लेड टू अ काइंड ऑफ रिफ्ट बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन यूके एंड रशिया, और दिस लेड टू लाइक यूके टू गो फॉर लाइक एक्सपेलिंग 27 आई थिंक अराउंड 20 रशियन डिप्लोमेट, और इन रिस्पॉन्स ऑफ इट रशिया ने आल्सो काउंटर किया और उसने भी लाइक जो डिप्लोमेट्स स्टेशन थे मॉस्को में उनको भी एक्सपेल कर दिया। सो इस तरह के एक्शंस दे फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ रिटॉर्शन जो मैंने बताया। नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन रिप्राइजल के रिप्राइजल इन इंटरनेशनल लॉ क्या होता है और स्टेट किस तरह इसे ऑप्ट करते हैं। So hello everyone, I am Daud and I'll talk about the reprisal concept in international law. So जैसा कि मोहसिन आपको रिटॉर्शन के बारे में बता चुका है, इसी तरह रिप्राइजल का कॉन्सेप्ट है बट इन अ डिफरेंट सेंस। रिप्राइजल बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ द एक्शंस टेकन बाय अ स्टेट, दी फोर्सफुल एक्शंस, लाइक इसके अंदर मिलिट्री इन्वॉल्व होती है। इसमें अगर कोई अग्रेसिव स्टेट आपके ऊपर कोई वायलेंट एक्ट करती है, लाइक इन अ सेंस कि इंटरनेशनल लॉ की ब्रीचिंग होती है, तो उसके रिटेलिएशन के अंदर आपको ये चीज़ अलाउड है कि आप उसके ख़िलाफ़ कोई इलीगल एक्शन ले सकते हो।
जैसे कि आप रिटेलिएशन के अंदर उसके ऊपर भी आप अटैक कर सकते हो, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब ये इन अ सेंस लिमिटेड एंड डेलिबरेट वायलेशन इन इंटरनेशनल लॉ इसको कहा जाता है, और ये एक पनिशमेंट है जो कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर फोर्स करती है, जिसने जो पहली स्टेट है अगर उसने कोई इलीगल एक्शन किया हो या फिर वो एक वायलेंट स्टेट है तो उसके ख़िलाफ़ ये पनिशमेंट जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ लीगल है जब ये सेल्फ़ डिफेंस के कॉन्सेप्ट में आएगा। सेल्फ़ डिफेंस के अलावा इसका कोई और लीगैलिटी नहीं है। और एक और इसके अंदर चीज़ आती है जब यूएन इसको ऑथराइज़ कर दे सच एन एक्ट को। लाइक आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई 1990s के अंदर जब व्हेन यूएस अटैक द सद्दाम हुसैन रजीम, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ द थिंग्स के कोई भी जो स्टेट के ऊपर आप रिप्राइजल का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसको आप आसान अल्फाज में टिट फॉर टैट कर सकते हो या फिर जैसा करना वैसा भरना। ये भी एक इसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई स्टेट कोई वायलेंट एक्ट कर रही है तो उसके रिज़ल्ट में उसके ऊपर वही सेम काइंड ऑफ अटैक जो है वो किया जा सकता है। और इसका जो बेसिकली जो इसका होल आइडिया होता है, जो गोल होता है, वो ये होता है कि जो एग्रेसिव स्टेट है उसके ऊपर एक डेटरेंस क्रिएट की जाए ताकि वो अटैक ही ना करे किसी और दूसरी स्टेट के ऊपर। अब इसमें जो डेंजर है सबसे बड़ा, डेट इज़ द किलिंग ऑफ सिविलियंस। इसमें मोस्टली तौर पे जो सिविलियंस हैं वही किल होते हैं, क्योंकि अब अगर एक स्टेट जो है जो अग्रेसिव स्टेट है वो किसी न्यूट्रल स्टेट के ऊपर अटैक करती है तो उसके अंदर सिविलियंस की किलिंग होती है। अगर वो न्यूट्रल स्टेट फिर रिटेलिएशन के अंदर रिप्राइजल का कॉन्सेप्ट लेकर आती है तो उसके अंदर भी सिविलियंस को किलिंग हो रही होती है। और सिविलियन की किलिंग रिप्राइजल के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगी। सिविलियंस की जो किलिंग होगी उसको एज अ वायलेशन ही कंसिडर किया जाएगा। अब ये होल कॉन्सेप्ट जो है रिप्राइजल का, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटरेंस एंड क्रेडिबिलिटी। और ये बेसिकली जो रिप्राइजल्स हैं ये कुछ रिप्राइजल्स प्रोहिबिटेड हैं, लाइक द रिप्राइजल्स विच इंक्लूड द किलिंग ऑफ सिविलियंस एंड द सिविलियन ऑब्जेक्ट्स। अब सिविलियन ऑब्जेक्ट्स में आपके कल्चरल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज आती हैं, आपकी जो एंटरटेनमेंट बिल्डिंग्स लाइक आपकी जो भी सिनेमाज वगैरह, आपके मॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ये प्रोहिबिटेड हैं। आप सिर्फ दूसरे पे अटैक कर सकते हो उसको पनिशमेंट के तौर पे, उसके अंदर सिविलियंस एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल आप ले सकते हैं, पाकिस्तान ने जब फरवरी 2020 के अंदर जब इंडियन अग्रेशन के ख़िलाफ़ अपना जो एक्ट किया था, जो कुलभूषण यादव को पकड़ने वाला एक्ट था, वो एक काफ़ी मशहूर एक्ट हुआ था। वो रिप्राइजल का एक्ट था। इंडिया अटैक्ड फर्स्ट एंड देन द रिटेलिएशन केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दीज वर बोथ वायलेंट, दीज इंक्लूडेड द यूज़ ऑफ मिलिट्री। ये दोनों एक्ट जो थे, तो ये जो पाकिस्तान का जो एक्ट था वो रिप्राइजल का एक्ट था। अब नाउ कमिंग ऑन टू द कंडीशंस फॉर रिप्राइजल, देयर आर 4 कंडीशंस ऑन विच द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्राइजल शुड बी बेस्ड। सबसे पहली तो कंडीशन है डेट इज़ द सोल पर्पस इज़ टू इंड्यूस वंस एडवर्सरी टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल लॉ। इसका जो मेन पर्पस ये होना चाहिए कि जो आपका दुश्मन है उसको आप कंप्लाई कर सको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ताकि वो एक डेटरेंस का कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्रिएट हो कि अगर वो अटैक करेगा तो उसको रिटेलिएशन के अंदर भी नुकसान ही होगा। अब जो सेकंड है डेट इज़ इट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई और ऐसा अदर मीन्स नहीं है, लाइक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, ट्रेड को ख़त्म करना, ऐसा कोई एक्ट जब काम नहीं कर रहा तो फिर लास्ट रिजॉर्ट के अंदर जो रिप्राइजल कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। थर्ड इज़ इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन स्टेट। जो स्टेट रिप्राइजल के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलने जा रही है या जो रिटेलिएट करने जा रही है तो वो तभी कर सकती है जब हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी उस स्टेट के अंदर उसको ऑथराइज करेगी। द फोर्स इज द सच एक्सरसाइज मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू प्रायर वायलेशन। लाइक जितना एक एग्रेसिव स्टेट ने आपके ऊपर अटैक करके जो वायलेंस किया है उतनी ही प्रोपोर्शनेट के अंदर आप भी उसके ऊपर अटैक कर सकते। उसके अलावा आप उसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते। ज़्यादा डैमेज करोगे दैट इज़ द वायलेशन इंटरनेशनल लॉ, और उसके ऊपर फिर आपके ऊपर जो है वो रिप्राइजल का कॉन्सेप्ट दोबारा चल सकता है और इन अ सेंस इट कैन कन्वर्ट इनटू अ वॉर और इट कैन कन्वर्ट इनटू अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर रिप्राइजल। नाउ आई वुड लाइक टू conclude our group will like to conclude the whole concept by using an example in 1928 between Germany and Portugal, sorry. Thank you.
So it is explaining about the Neolila dispute between Portuguese and German Southwest Africa in 1928 and example as a case of reprisal. अब यहाँ पर इस न्यूलीला डिस्प्यूट के कुछ की फैक्ट्स एक्सप्लेन है और ये केस एज अ रिप्राइजल प्योर है इंटरनेशनल लॉ से. सो लेट्स काउंटरिंग द फैक्ट्स. बेसिकली न्यूलीला डिस्प्यूट जो था वो एंगोलियन पुर्तगीज़ और जर्मन ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के दरमियान हुआ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ वर्ल्ड वार वन. और इस फेस में जर्मन मिलिट्री इंगोलियन बॉर्डर क्रॉस करते हुए विदाउट एनी परमिशन ऑफ पुर्तगीज़ वहाँ एंटर हुए और न्यूलीला फोर्ट पर पुर्तगीज़ फोर्सेस के तरफ से जो जर्मन मिलिट्री को इंटरसेप्ट किया गया और डिफेंस इंश्योर करते हुए पुर्तगीज़ की तरफ से जर्मन सोल्जर शूट हुए और इसके इमीडिएट रिएक्शन में जर्मन फोर्सेस ने पुर्तगीज़ बॉर्डर पर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय किया और इस समय जर्मन ने पुर्तगीज़ फोर्ट को भी डैमेज किया एंड किल ऑल स्टेशन बॉर्डर. इसमें एक मेन रीज़न ये भी थी कि उनके दरमियान लैंग्वेज बैरियर ड्यू टू नॉट गुड प्रोफिशेंसीज एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट ने उनको कंफ्यूज किया कि शायद जर्मनी किसी चालाकी से अंगोला पर कब्ज़ा करके यानी कब्ज़ा कर रहा है और सेम इसी तरह जर्मन्स भी इस गलत फहमी का शिकार हुए कि पुर्तगीज़ ने भी उनसे ट्रिक खेली है. बट इनफैक्ट ये सारी सिचुएशन और इसकी जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सब मिसलीडिंग थी, कंट्रोवर्शियल थी. Therefore, this case is about a clash of two colonial empires, that is first politically, then militarily, third is legally. Now, further looking over the reprisal of Nulila case. Actually, Nulila case reprisal considered to notice that the entire factual element are concerned with happening in the fortress of Nulila. Nulila case जो है वो lawful reprisal से लिंक करता है लाइक प्रियल एक्ट कॉन्ट्रेरी टू इंटरनेशनल लॉ. सेकेंडली अनसेटिस्फाइड डिमांड फॉर रिपरेशन. थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्राइजल. इस तरह से न्यूलीला केस जो है वो पुर्तगीज़ और जर्मनी के दरमियान प्रोसीडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटिंग है.